اس واسطے میں اپنے بھراواں نوں یہ آکھاں کہ جدو اسی نعرہ لانے مزدور اتحاد زندہ باد کہ اپنی نفرتاں ختم کرو، انہاں سرمایہ دارا جگیر دارا دے خلاف اکٹھے ہو، جب تک تسی اکٹھے نہیں ہوندے بار بار انہوں جا کے تسی ووٹ دیندے ہو مگر وہ تواڈے مسائل حل نہیں کردے۔ کیوں کہ مجھے دیاں بہناں ہوندیاں نے، انہوں نے اپنے طبقے کی حمایت کرنی ہوندی ہے، انہوں نے تہاڈی حمایت نہیں کرنی ہوندی۔ جدو تسی انہاں نوں ووٹ دیندے ہو، اج کتنا عرصہ ہو گیا ہے، آج 75 سال ہو گئے نے، کوئی دس سکتا ہے کہ اسمبلی دے وچ کسی غریب دے حقوق واسطے نریائی سازش کیتی ہوئے؟ جدو تنخواہ دا مسئلہ ہوندا ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاندے نے، جدو مزدور دا مسئلہ ہوندا ہے تے انہاں نوں سب سن جاندا ہے۔ اس واسطے میں کیونکہ کافی مقرر ہے نے میرا آج دل تے کردہ سی چونکہ میں پہلی باری آیا اپنے دل کی بھڑاس کڈاں انہاں سرمایہ داراں اور جگیر داراں دے خلاف تو ہم دساں کہ کس طرح لٹ دئیے، تسی کس طرح لٹی ہو۔ اگر سرمایہ دار 100% پرافٹ ہو رہا ہے تے اس سال 1% کا پرافٹ گھٹ جاتا ہے تو پٹن لگ جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے 90% منافع مل رہا ہوتا ہے مگر مزدور نوں دین واسطے وہ کو کوڑی نہیں ہوتی۔ اس واسطے جدو یہ کرنی پڑے گی سان کٹھا ہونا پڑے گا اور سامراجی نظام کے خلاف کٹھے ہو کے جدو یہ کریے، یہ آنے ٹگے پیسے کی لڑائی ختم کریے، اسی اس ملک میں ایسا نظام لے آئیے جنہیں کوئی نہ لٹن والا ہوئے نہ کوئی لٹی جانا والا ہو۔ دوستو دنیا بھر کے محنت کشو، دنیا بھر کے محنت کشو، دنیا بھر کے محنت کشو۔ دوستو ملک نذیر عوان صاحب آپ سے مخاطب تھے اور انہوں نے آپ کے حقوق کے لیے اور آپ کے جو مطالبات ہیں ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، اور میں اب دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حفیظ بلوچ صاحب کو، ممبر ہیں سینٹرل کمیٹی کے، وہ نیشنل پارٹی کے حفیظ بلوچ صاحب۔ نیشنل پارٹی کے قائد محترم جناب ڈاکٹر عبدالمالک صاحب، جناب سینیٹر طاہر بزنگو صاحب، نیشنل پارٹی پنجاب کے صدر امین ملک صاحب، نیشنل پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل جناب طالب حسین صاحب، نیشنل پارٹی پنجاب کے سینئر نائب صدر جناب ملک نذیر عوان صاحب، نیشنل پارٹی کے صدر کمیٹی کے ممبر جناب عبدالستار صاحب، فیصل آباد کے محنت کشوں، فیصل آباد کے مزدوروں، ہم آپ کی جدوجہد کو سب سلام پیش کرتے ہیں۔ جس انداز میں آج آپ نے ہمارے قائدین کا استقبال کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک بھرپور جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، امیر طاہر بزنگو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بلوچستان کے اندر اسی طرح کے انہوں نے ایک بھرپور جدوجہد کی۔ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب بھی عوام کے نمائندے ہیں، اسی طرح کے عام سیاسی کارکن ہیں جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بلوچستان میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے تو یہاں کے حالات اس سے زیادہ مشکل نہیں ہیں، یہاں کے حالات اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں۔ نیشنل پارٹی آج بلوچستان کی سب سے بڑی اور باشعور سیاسی کارکنوں کی جماعت ہے۔ آپ لوگوں نے شاید میڈیا پہ دیکھا ہوگا، آج دو تین دن پہلے 29 تاریخ کو جو بلدیاتی الیکشن میں نیشنل پارٹی نے وہاں پہ بھرپور کامیابی حاصل کی ہے۔ مکران، خزدار، پنجور، صحبت کو بارکھان تک نیشنل پارٹی کے نمائندے عام جو بلدیاتی انتخاب میں ان میں جیت کے آئے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ یہاں پہ بھی اسی طرح سے بھرپور انداز میں آپ لوگ جدوجہد کریں اور اپنے نمائندے پیدا کریں جس
फैसला नेशनल पार्टी के 2 टुकड़े बलोचिस्तान के अंदर किया है। हमारी पार्टी में किसी सरदार की बालादस्ती नहीं है, किसी जागीरदार की बालादस्ती नहीं है। वहाँ पे अगर बालादस्ती है आम पढ़े लिखे बाशऊर सियासी कारकुनों की है। यही आप लोगों से अपील होगी कि आप लोग मुनज़्ज़म होकर यहाँ के सरमाएदारों के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज करें। जहाँ पे अलमिया ये है एक रजीम चेंज होता है लेकिन चेहरे वही होते हैं। आज बज़ाहिर हुकूमत तब्दील हुई है लेकिन डेरा गाजी खान के अंदर राजनपुर के अंदर हम देखते हैं वही सरदार दूसरे एक सरदार गया दूसरे सरदार आ गए। मेरे ख्याल में आप लोगों के इलाकों में भी यही श्रेणी होगा, यही सीन होगा। तो मेरी आप लोगों से ये अपील होगी कि आप लोग यहाँ पे नेशनल पार्टी को मुनज़्ज़म करें, जनाब अयूब मलिक के हाथ मजबूत करें ताकि पाकिस्तान भर के मजलूम लोग, पाकिस्तान भर के महकूम लोग आपस में जुड़कर एक मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान भर में एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद का आगाज करें। एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया। आज पुरानी तदबीरों से आज के शोले थम न सकेंगे, उभरे जज्बे दब न सकेंगे, उखड़े परचम जम न सकेंगे। दोस्तों, मैं दावत खिताब देने वाला हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं, पेशे के लिहाज से जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं। हमने जब भी इनको फैसलाबाद में दावत दी तो वो उसी वक्त यहाँ तशरीफ लाते हैं। फैसलाबाद के मजदूरों के मसाइल को हल करने के लिए वो अपने तय पूरी कोशिश करते हैं। मजदूरों के मुकदमात हों उनमें वो भरपूर उनका साथ देते हैं। फैसलाबाद में मजदूरों के ऊपर जो मुकदमे बनाए गए थे उन मुकदमों के अंदर आका साहब ने हमारा भरपूर साथ दिया। हमें बहुत से फंड रेज करके इन्होंने यहाँ दिए। मजदूरों की जद्दोजहद में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब आगा अब्दुल सत्तार साहब, मेंबर सेंट्रल कमेटी नेशनल पार्टी, वो आए और आपसे मुखातिब हों। जहानी कौम के मखलूज फलसफा दानों निज़ाम नौ के तकाज़े सवाल करते हैं, ये रास्ते ये शाहराहें इसीलिए बनी थी क्या कि इस पे देश की जनता सिसक के मरे। ज़मीने इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हव्वा बिलक बिलक के मरे। मिले इसीलिए रेशम की ढेर बनती हैं कि दुख्तरान वतन तार तार को तरसें। चमन को इसलिए माली ने खून से सेंचा था कि उसकी अपनी निगाहें बाहर को तरसें। मोअज़्ज़िज़ कायदीन और मजदूर साथियों, आज आपने ये पूछा नेशनल पार्टी का ये पहला तारुफ है आपसे कि नेशनल पार्टी का बुनियादी मकसद क्या है। नेशनल पार्टी उस मजदूर के लिए काम करना चाहती है जो बेहतरीन बंगले बनाता है लेकिन झोपड़पट्टी में रहता है, बेहतरीन कारें बनाता है लेकिन खुद साइकिल भी नहीं चला सकता, बेहतरीन चप्पले जूते बनाता है लेकिन उसके अपने बच्चे जून की सख्त गर्मी में नंगे पैर घूम रहे होते हैं, बेहतरीन ब्लैंकेट बेहतरीन लिहाफ बनाता है लेकिन उसके अपने बच्चे दिसंबर की सर्दी में सिसक के सर्दी से ठठर के मर रहे होते हैं, बेहतरीन दवाई बनाता है लेकिन शायद खुद डिस्प्रिन भी खरीद ना सके। हम उस किसान की बात करते हैं जो धरती की छाती चीर के अनाज उगाता है लेकिन उसके अपने घर में फाकों का राज होता है, उसके अपने घर में भूख के पहरे होते हैं। हम बुनियादी तौर पर समझते हैं, नेशनल पार्टी ये समझती है कि इस मुल्क में हुकूमत मजदूरों की, किसानों की, निचले तबकात की, किसी छापड़ी वाले की, किसी फैक्ट्री वाले की, किसी क्लर्क, किसी चपरासी की, किसी तालीम याफ्ते नौजवान की हो, किसी जागीरदार, सरमायादार या जर्नैल की ना हो जिन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन हमारे हुकूक सल्ब किए जाते हैं और हम क्यों कहते हैं कि मेहनत कश की हुकूमत इस मुल्क में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ख्याल में पूरी दुनिया का में जितनी तरक्की हुई है और तरक्की का जो पहिया आगे चला है वो मेहनत की वजह से चला है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई सेठ हूं और मैं
50 मशीनें लेकर खरीद लूं और उसके आगे बीट बजाना शुरू कर दूं या ढोलक बजाना शुरू कर दूं, तो क्या उसमें से दौलत निकलेगी? उसमें से दौलत उस वक्त तक नहीं निकलेगी जब तक मजदूर का खून पसीना उस पर नहीं लगेगा। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि उस मजदूर को वो नहीं जाते, उसको कौम के नाम पर, जबान के नाम पर, फिरके के नाम पर तकसीम किया जाता है। मुझे आज से एक सीधी सी बात बताएं कि हम लाख की डोल पीटते हैं जबानों के, नस्लों के, फिरकों के। अगर मेरी फैक्ट्री का मालिक कोई बरेलवी है, आपकी फैक्ट्री का मालिक कोई देवबंदी है, किसी और की फैक्ट्री का मालिक कोई अहले हदीस या वहाबी है, किसी और फैक्ट्री का मालिक कोई शिया सुन्नी या कोई और मजहब का और फिरके का मानने वाला है, सबका मफाद मुश्तरका है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का खून चूसो, उन्हें सोशल सिक्योरिटी ना दो, उन्हें हेल्थ सिक्योरिटी ना दो। वो अगर मासूर हो जाए तो उनको बिल्कुल इसी तरह निकाल दो जिस तरह दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। इसी तरह जो मजदूर है, चाहे वो मजदूर उसकी कोई भी जबान हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी फिरका हो, सबको सोशल सिक्योरिटी चाहिए। सबको ये चाहिए कि उनके काम के औकात कम हो, सबको ये चाहिए कि उनके बच्चों को तालीम मिले, सेहत मिले, पीने का साफ पानी मिले, उनको रिहाइश मिले। तो बुनियादी तौर पर तमाम लोगों का, तमाम मजदूरों का मफाद एक जैसा है, चाहे वो सिंध के मजदूर हो, बलूचिस्तान के मजदूर हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के मजदूर हों या पंजाब के मजदूर हों, सबके मफादात एक जैसे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम जो है वो फिरकों में, जबानों में बटे हुए हैं, एक दूसरे के गले काट रहे हैं, एक दूसरे पर तानाजनी कर रहे हैं और मुत्तहिद नहीं हो रहे। हमारे शऊर पे मातम करते हुए किसी शायर ने कहा था कि ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, जमाने की फिटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई, न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत के घर नालियों में बसेरे, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो, ये हर एक की ठोकरे खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, ये मजलूम मखलूक घर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए, ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले, कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। मजदूर साथियों, सोई हुई दुम हिलाने का वक्त है। हमें ये देखना चाहिए कि ये जो हमारी पूरी पार्लियामेंट है, इसमें कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो जिसका ताल्लुक गरीब तबकात से हो। सारे कानून इनके अपने लिए बनते हैं। हमारे मुल्क में गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। 25,000 अगर मजदूरों की तनख्वाह अनाउंस भी हो जाती है, उस पर कभी अमल दरामद नहीं होता। और ये 25,000 इस महंगाई के दौर में, जब बिजली का बिल भी 7-7, 8-8 हजार का आ रहा हो, हमारी सरकार 70 साल में हमें घर नहीं दे सकी, 70 साल में हमें तालीम नहीं दे सकी, 70 साल में हमें सेहत नहीं दे सकी, 70 साल में वो हमें पीने का साफ पानी भी नहीं दे सकी। आज भी मजदूर बस्तियों में ना कोई गटर का सिस्टम है, ना पीने का साफ पानी है, ना उनके बच्चों के लिए अच्छी तालीम है, ना उनके घर वालों के लिए सेहत है। और आपने देखा है कि जब भी किसी फैक्ट्री में कोई तनाज़ा होता है, अगर मजदूर हड़ताल पे जाते हैं तो पुलिस आके मजदूर को गिरफ्तार करती है या सेठ को गिरफ्तार करती है। मजदूरों को हक भी नहीं दिया जाता। झूठे मुकदमा, दहशतगर्दी के जितने पर्चे कटे पूरे पंजाब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेहनत कशों पर और मजदूर लीडरों पे दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। जो पर्चे तालिबान दहशतगर्दियों के खिलाफ करते थे, वो मजदूरों के खिलाफ। तो शायद हमें अब उठना होगा, हमें अपना हक छीनना होगा। जैसे कि जॉन एलिया ने कहा था कि हर तंज किया जाए, हर एक ताना दिया जाए, कुछ भी हो पर अब हद अदब में न रहा जाए। तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। तो हमें बुनियादी तौर पर हक ये छीनना पड़ेगा, हमें ये प्लेट में नहीं मिलेगा। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि नहीं जी, हम तालीम नहीं दे सकते, हम सेहत नहीं दे सकते, पेट्रोल की कीमतें ऐसे बढ़ाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, बिजली की कीमतें ऐसी बढ़ाते हैं कि इनको कोई फिक्र नहीं। दरअसल बुनियादी तौर पर मसला यह है कि हमारे हुक्मरानों के बच्चे पैदा जरूर पाकिस्तान में होते हैं, वो तालीम बरतानिया में हासिल करते हैं, शादी इटली में करते हैं और हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं और हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं। जब तक आप
आप डॉक्टर मालिक जैसे, ताहिर बिजंजो जैसे आम सियासी कारकुन को ऐवान में नहीं पहुंचाएंगे उस वक्त तक ये मसला नहीं होगा। 2.5 साल की सिर्फ गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान में, उस 2.5 साल की गवर्नमेंट में डॉक्टर मालिक की गवर्नमेंट ने 6 आला तालीमी इदारे कायम किए, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी था, यूनिवर्सिटी भी थी। तालीम और सेहत की बजट को बढ़ाया वहां पर। बिल्कुल इसी तरह 3.5 लाख के एकड़ की जमीन जो मुख्तलिफ लोगों ने कब्जा की थी, वो जमीन उन्होंने छुड़वाई। लेकिन ये सिर्फ 2.5 साल का अरसा था। डॉक्टर मालिक उस सूबे के साबिक वजीर आला हैं। पंजाब में आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि यहाँ काउंसलर से मिलना भी मुश्किल है, यहाँ पर रुकने कौम सूबाई असम्बली से मिलना मुश्किल है। वो 5 साल में एक दफा आपको आकर दीदार कराता है। लेकिन नेशनल पार्टी की सारी क़यादत हर वक्त अपने कारकुनान के दौरान मौजूद होती है, उनके दरमियान मौजूद होती है, उनके सवालात का जवाब देती है, उनके एतराज़ात का जवाब देती है। तो जब तक हम अपनी क़यादत अपने में से नहीं उठाएंगे उस वक्त तक मसला नहीं होगा। मजदूर को ये बताया जाता है कि मजदूर हुकूमत नहीं करता। जो हाथ मशीन चला सकते हैं, जो हाथ मुल्क के लिए दौलत पैदा कर सकते हैं, उनके लिए हुकूमत चलाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। जरूरत सिर्फ इस अमल की है कि हम में एतमाद हो और उस चीज को और उस हुकूमत को चलाने के लिए हम में वो ताकत हो जो हम में मौजूद है। तो आप अपने लोगों में से अपनी क़यादत मुंतखब करें ताकि इस मुल्क में कोई हकीकी मायनों में तब्दीली आ सके। वो तब्दीली नहीं जो इमरान और बुशरा पीर नहीं लेकर आई हैं, बल्कि वो तब्दीली जो हकीकी हो, जो मजदूरों, किसानों और आम आदमी को उनका हक दे सके। और शुक्रिया। सरदार साहब आपसे मुखातिब थे। दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा जो लोग बाहर खड़े हैं वो अंदर कुर्सियां खाली हैं, अंदर तशरीफ ले आए। जो भी दोस्त बाहर खड़े हैं वो अंदर तशरीफ ले आए, बहुत मेहरबानी। दोस्तों मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब तालिब हुसैन साहब को, जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल पार्टी पंजाब के। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबको इस कामयाब प्रोग्राम पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं राणा अजीम साहब, सफदर साहब, जितने भी साथी जिन्होंने मेहनत करके आज की ये तकरीब मुनक्कद की है वो इंतहाई तारीफ के काबिल है। अभी फैसलाबाद में पार्टी को बने हुए तो 2-2.5 महीने हुए हैं और इन 2-2.5 महीनों के अंदर आपने इतना बड़ा इकट्ठ करके ये साबित कर दिया है कि आप ना सिर्फ तंजीम साजी कर सकते हैं बल्कि एक मौसर पार्टी बना सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर राणा अजीम साहब, सफदर साहब, जितने भी साथी हैं सब ट्रेंड वर्कर हैं जिन्होंने मिलों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर काम किया है। वो यहाँ पर एक अच्छी पार्टी बना सकते हैं और बाशऊर वर्कर हैं। मैं समझता हूँ कि बाशऊर वर्कर चाहे तादाद में कम ही हो उस हजूम से बेहतर है जैसा कि हमारी बड़ी पार्टियों का हजूम था। जब भी थोड़ी सी मुसीबत आती है, प्रेशर आता है, पार्टी खत्म हो जाती है। हमारे सामने डॉक्टर साहब की मिसाल है, ताहिर बिजंजो साहब की मिसाल है, उससे पहले मीर हासिल खान की मिसाल है। ये वो लोग हैं जो पैदल स्कूल जाया करते हैं। ये वो लोग हैं जो 5-5 किलोमीटर चलकर पैदल स्कूल जाते थे। इन लोगों ने जलसों में कुर्सियां लगाई हैं, पानी पिलाए हैं, जैसे यहाँ पे लड़का पानी पिलाया। और लीडर कैसे बने हैं? एक प्रोसेस, एक अमल के जरिए इन्होंने वर्करों को अपने साथ जोड़ा, पार्टी की तंजीम साजी की। पंजाब में ऐसा नहीं होता, इसीलिए पंजाब में बड़ी पार्टी नहीं बन सकी। हमें इस बात की जरूरत है कि अगर हमने ये बड़ी सरमायादार जालिम पार्टियों के सामने अपनी पार्टी खड़ी करनी है तो ट्रेन तरबियत याफ्ता वर्करों का ग्रुप बनाने पड़ेंगे, उनकी यूनिट साजी करनी पड़ेगी। और फैसलाबाद वालों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता
कैसे करनी है। देखिए, ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। आपसे जब लोग कहते हैं कि यहाँ बड़ी पार्टी नहीं बन सकती, मजदूरों की पार्टी नहीं बन सकती, किसानों की पार्टी नहीं बन सकती, आप उनसे सवाल करें भाई, ये इंडिया में 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी कैसे बन गई, बलूचिस्तान में नेशनल पार्टी कैसे बन गई। बलूचिस्तान का समाज तो हमसे ज्यादा मुश्किल है, वहां पर तो सारा सरकारी निजाम है, जब फ्यूडल है। वहां अगर नेशनल पार्टी बन सकती है, हमने 2013 के इलेक्शन में 11 एमपी दिए जो आप जैसे थे, बिल्कुल आप जैसे मजदूर तबके के एमपी है। हमने सेनेटर दिए, बिल्कुल मध्यस्थ तबके के सेनेटर दिए। हमने वजीर आला वो दिया जिसने आज तक अपना घर नहीं बनाया, जिसके पास लैंड क्लूजर नहीं है। तो ये सब मुमकिन है, बात नजरिए को समझने की है, और फैसलाबाद वाले इस नजरिए को बखूबी समझते हैं। ये मजदूरों का शहर है, यह हमेशा ट्रेड यूनियन को रूझ रहा है, मजदूरों की सियासत होती रही है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कामरेड फैसलाबाद में पैदा किए हैं, और हमें उम्मीद है ये इनकलाब की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, ये सांदरबार की धरती है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, हम एक पंजाब के अंदर एक मौसर पार्टी बनाएंगे, और ये सब जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो इंशाअल्लाह आपके पास चल कर आएंगी कि राणा साहब, सफदर साहब, हमजा साहब, वहाब साहब, आइए मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि हम मजदूरों को मानते हैं, हम जगीरदार और सरमायादारों के साथ नहीं चल सकते। तो इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, आप सबको मुबारकबाद। राणा साहब, तमाम साथियों को, आप लोगों को सोच रहा बहुत बहुत जो तकाज़ाए हुनर हो वही मकदूर बने, जो तकाज़ाए हुनर हो वही मकदूर बने, मुल्क में काश कोई ऐसा भी दस्तूर बने, सिर्फ मेहनत ही से मुमकिन हो हर शय का असूल, इब्ने मजदूर जरूरी नहीं मजदूर बने। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब अयूब मलिक साहब को, नेशनल पार्टी के लीडर जनाब अयूब मलिक साहब। बेहंते ने जेड़े बैठ के शिकवा करन मुकदरां दा, बेहंते ने जेड़े बैठ के शिकवा करन मुकदरां दा, उगण वाले उग पैदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। ये बाबे का मैसेज है फैसलाबाद के मजदूरों वास्ते। लेकिन मैं सब तो पहले साढ़े मजदूर लीडर साढ़े दोस्त फौत हो गए हैं, उन्होंने वास्ते मियाँ कयूम के वास्ते मैं ज़्यादा तज़ियत करना तमाम मजदूर दोस्तों कि अल्लाह ताला उन्होंने जान रहमत दे और जन्नत उन्होंने मुकाम मिले। दोस्तों गल्लां तो सारियां दोस्तों ने कर दी ने, मैं सिर्फ 2-4 चीज़ें दसांगा कि नेशनल पार्टी दूसरे पार्टी तो मुख्तलिफ क्यों है, असी की चाहते हैं, बस इन्नी गल मैं तुहाडे नाल करनी। दोस्तों सब तो पहले नेशनल पार्टी इस पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है। एक मिलिट्री स्टेट है, असी उस सिक्योरिटी स्टेट को उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं वेलफेयर स्टेट? इस वास्ते चाहते हैं कि 99% जो लोग हैं वो मजदूर ने, किसान ने, उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की ने, उन्होंने तारा बनाई ने, ये बिजली के खंभे लाए ने, उन्होंने जमीन के अंदर खेती बाड़ी करके थोड़े सारे वास्ते खाना बनाया, अनाज बनाया, उन्होंने कोई इज्जत नफ्स नहीं। जो पैदा कर रहा है, जो सब कुछ बना रहा है, वो इज्जत नफ्स नहीं, असी उसकी इज्जत नफ्स बाहर करना। और किस तरह करेंगे? वो इस तरह करेंगे कि असी इस जी रियासत है इनके लोगों और रियासत के दरमियान एक रिश्ता बनावांगे। और रिश्ता की होएगा? और रिश्ता होएगा जो मां का उसके बच्चों का रिश्ता होगा। नेशनल पार्टी इस रियासत को एक मां की तरह समझती है, जिस तरह यूरोप एक रियासत है, जिस तरह यूरोप एक वेलफेयर रियासत है। और वो मां जी है सारे बच्चे ना प्यार करेगी, लेकिन उस बच्चे ना सबसे ज्यादा प्यार करेगी जेडे गरीब होंगे, मजदूर होंगे, किसान होंगे, जेडे पीछे रह जाएंगे। और तुम देखो साढ़े घर च भी मावा उस गरीब बच्चे ना रहती नहीं,
وہ غریب پتر کے نال رہندیاں نے اور دوسرے بچے بھائیوں کہندیاں نے یہ خیال کرو پیچھے رہ گیا یہ غریب رہ گیا اس بھرا کا خیال کرو اسی اس ریاست کو بنانا چاہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب جو بیٹھے نے اس واسطے اپنی زندگی دیتی انہوں نے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے ریاست کا کی بنیا جس نام پاکستان ہے یہ وہ ماں کیوں نہیں بن سکی کیونکہ اس ماں کو اغوا کر لیا ہے ان جاگیرداروں نے ان سرداروں نے ان جرنیلوں نے اس سجادہ نشین نے جو اغوا کیا ہے نیشنل پارٹی انہاں کو لوگ چھوڑا کے مزدوروں کے کسانوں کے حوالے کرے گی یہ سارا مقصد ہے پارٹی میں دوستو حالیہ الیکشن تسی دیکھا کہ سانو 2018 کے الیکشن کے بالکل بات کر دیتا گیا سی ہوں اسی الیکشن لڑے ہیں اور تسا سارے نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت اسی تیسرے نمبر کی سب تو بڑی پارٹی بن گیا ہے 4 شہر ساڈا میئر بنے ہیں تربت فلزار کاران آرام ساڈے میئر بنے ہیں والے جو لوگ عام کے لوگ اس طرح عام کے لوگ نے ایک چندہ جمع کر کے الیکشن لڑے ہیں انہیں سرداروں کے مقابلے انہیں جاگیرداروں کے مقابلے جڑے جاگیردار ہیں انہوں نے ظالم نے یہ سانو ہمت دینا کر کے آئے ہیں انہوں نے کردار سارے سامنے کوئی ایک پیسے کا الزام نہیں لا سکتا کہ وزیر اعلیٰ جب بنے سن تو سب تو پہلے انہوں نے سارے کو ایک یونیورسٹی ہوتی سی ایک میڈیکل کالج ہوتا سی بلوچستان کے انہوں نے 6 یونیورسٹی بنائی اور 3 میڈیکل کالج بنائے یہ واحد بلوچستان ہے جس میں صحت کا بجٹ 3% تو 18% اور ایجوکیشن کا بجٹ 6% تو 26%. عثمان صاحب یہ پاکستان کی کوئی اور تنظیم سازی کے علاوہ سارے کو کوئی اور کام نہیں اسی تنظیم سازی نہیں کریں گے ساری پارٹی آگے نہیں بڑھ سکتی اسی انہیں جاگیرداروں اتنے جڑے سماجدار نے انہوں چیلنج تاں ہی کر سکتے ہیں اسی آرگنائز ہوئے رانا صاحب عظیم صاحب تھوڑے کو موجود ہیں سارے لیڈر موجود ہیں انہوں نے پیچھے چلو انہوں نے اگے لیڈر بناؤ تاکہ اسی تمام جڑا فیصلہ باد اپنے بندے کھڑے کر سکیے انہوں نے کوشش کر کے ہوں تک دسیا ہے کہ 10 یونین کونسلر کے بندے کھڑے کریں گے میں انہوں نے اپنے سلام پیش کرنا ہے کہ 2-3 مہینے کی کوشش انہوں نے 10 یونین کونسلر بنانے کا کتنے اعلان کیا ہے میں یقین ہے کہ آئندہ جو لوکل باڈی الیکشن ہوں گے کہ اور لوگوں باڈی شامل کریں گے اپنے کردار کی بلندی کے ساتھ. تو دوستو یہی میسج ہے کہ نیشنل پارٹی یہ چاہتی ہے ایک تصور ہے کہ اس ریاست اور لوگوں کے درمیان رشتہ ہوئے اور رشتہ ماند ہوئے اور اس واسطے ڈاکٹر طارق صاحب سارے موجود ہیں جنہوں کی گلیں تھی سنو گے اور انشاءاللہ تھوڑی ہر بندہ اپنے آپ کو کہے گا میں ڈاکٹر مالک ہاں کیونکہ میں اپنے طور پر سمجھنا کہ میرے اور ڈاکٹر مالک کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ پارٹی اس قسم کی پارٹی ہے یہ پارٹی وہ جاگیرداروں کی جو سنی نہیں ہے راستی پارٹی نہیں ہے یہ ہر 3 سال کے بعد ایک صدر بنتا ہے اور وہ لوگوں کو ڈلیور کرتا ہے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب دوستوں کا عثمان صاحب جتنے بھی لوگ اتنے آئے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں کہ تھی لوگ آئے اور یہ پیغام نیشنل پارٹی کا بتایا. بہت شکریہ تھینک یو. دوستو ہوں میں دعوت خطاب دے رہے ہیں سینیٹر طاہر گزنجو صاحب کو. کسی مقتل کسی زندہ سے ڈراتے کیوں ہو کسی مقتل کسی زندہ سے ڈراتے کیوں ہو میری باری ہے تو پھر نام پکارا جائے. اسٹیج پر تشریف فرما قائدین کرام ہمارے فیصل آباد کے نہایت محترم دوستوں بھائیوں میں سب سے پہلے تو آج کے اس پروقار مجلس اور تقریب کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن پاکستان کی عمر اس وقت یہ آنے والے اگست میں 75 سال ہوگی اور اس طویل عرصے کے دوران آج بھی ملک بہترین قسم کی سیاسی و معاشی بحرانوں کا شکار ہے.
बदतरीन किस्म की महंगाई और बेरोजगारी। हम बिल्कुल यकीन और